Hello everyone, this is Subhendu Das, your physics mentor, and in today's class we will discuss our chapter electric charges and fields that is available in class 12 physics, and this is our session 1. So in our first session basically we will discuss the fundamental things regarding electric charges and fields, that is under the branch electrostatics of physics. And let's start this topic. So first we will discuss about electrostatics. So remember, in this word there are two things. One is your electro, another one is statics. Electro means that is dealing with electric charge, and statics means at rest. So in this word it suggests us that electrostatics means it deals with the study of electric charges at rest. And because of this reason, electrostatics also called static electricity. So it is also called static electricity. So I think this fundamental and preliminary part is clear to all of you. So next is, here one thing is there, electric charge. So now as per the content we have to understand what is electric charge. So listen one thing, if anyone will ask that define blood, how we can define? You may define blood is that fluid which contains RBC, WBC and platelets. Or we may define blood is a fluid that is available inside the human beings which is red in color. Both are true in its own aspects. Like this electric charge का कुछ particular definition नहीं है. It has no specific definition. But for understanding point of view, we may write like this. In different books it is written in different format. So electric charge we can define it as, it is the intrinsic fundamental property of matter that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field. And here the word electromagnetic field, it means this field is consisting of electric field and magnetic field. So in our chapter number 8 it will be discussed electromagnetic field. So now we are dealing with electric field. After some chapters we will deal with magnetic field, and after that the combined effect of electric field and magnetic field, that is electromagnetic field, that will be discussed in a very detailed manner. So electric का definition हो गया, it is the intrinsic fundamental property of matter that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field. और क्या बेसिक चीजें देखो, इसका रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर कैपिटल क्यू भी लिख सकते हो, नहीं तो स्मॉल क्यू भी लिख सकते हो, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू. एंड उसका जो यूनिट क्या होगा, तीन तरीके का यूनिट है अवेलेबल. देखो, वन इज योर एसआई यूनिट, अनदर वन इज सीजीएस यूनिट, नॉट सीजीएस, हियर वी विल डील विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. ईएसयू का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट. So what is the SI unit of electric charge? That is your coulomb, and it is represented by the letter capital C. Next is, as per the electrostatic unit, the unit is stat coulomb, STAT COULOMB. तो शॉर्टली मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा STAT कैपिटल C.
and electromagnetic unit is ab coulomb. तो रिप्रेजेंट करेंगे ए बी कैपिटल सी, एंड ये तीनों के बीच में एक रिलेशन अवेलेबल है. तो इन from for numerical point of view you have to remember the relation between these three things. So remember 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 start coulomb is equal to 1 by 10 ab coulomb. तो इसमें देखो एक चीज पता चल गया हमको, इफ आई विल आस्क व्हिच वन इज ग्रेटर, तो कूलम इज ग्रेटर और ab coulomb इज ग्रेटर. तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या पता चल रहा है, 1 ab coulomb is equal to 10 coulomb. So 10 coulombs is equal to 1 ab coulomb. That means 1 ab coulomb is greater than coulomb. That is the answer. So this is about the unit of charge. Next is what is the dimension. यूनिट हो गया, इसके बाद डायमेंशन. तो क्लास 10 फिजिक्स में हमको बताया I इज इक्वल टू Q बाई टी. तो करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम और कैपिटल I इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई टी, ऐसा भी लिख सकते हैं. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या पता चला, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी. तो डायमेंशन ऑफ Q कितना होगा, तो डायमेंशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू m0 L0 एंड टाइम का पावर 1 देन I टू द पावर 1. तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. एंड रिमेंबर ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटिटी है ना, तो ये कौन सा टाइप का क्वांटिटी है, इट इज स्केलर और वेक्टर. रिमेंबर इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्ज का जो भी फंडामेंटल डाटा. तो फर्स्ट इज इट्स रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट इज इट्स यूनिट, देन यूनिट का जो रिलेशन, नेक्स्ट वन इज डायमेंशन भी हो गया, एंड ये कौन सा टाइप का क्वांटिटी, दैट इज स्केलर क्वांटिटी. तो दिस इज अबाउट योर इलेक्ट्रिक चार्ज. एंड फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू यू मे रिमेंबर दिस यूनिट. इफ एनीवन विल आस्क 1 millicoulomb, that is equal to, remember milli means 10 to the power minus 3 coulomb. 1 microcoulomb जिसको हम लोग लिखेंगे 10 to the power minus 6. 1 nanocoulomb that is 10 to the power minus 9 coulomb. So like this we have to 1 microcoulomb, 1 microcoulomb. Micro means 10 to the power minus 6, तो दो बार लिखा है, तो this will be 10 to the power minus 12 coulomb. So this is about our electric charge. I think it is clear. So next come to our चार्ज का टाइप्स. तो फंडामेंटल थिंग हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में. देन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इसके अंदर भी एक छोटा सा कंटेंट अवेलेबल है. मैं दो चीज बोल रहा हूँ, दो साइंटिस्ट का नाम बोल रहा हूँ. वन इज अवर चार्ल्स डुफे. Charles Duffy. Another one is Benjamin Franklin. So remember, as per Charles Duffy suggested that electric charges have two types in nature. There are two types in nature. So this is the suggestion given by Charles Duffy. And as per Benjamin Franklin क्या कहते हैं, named these two kinds of charges are, named these two kinds of charges as positive and negative charge. So this is the story behind the types of electric charge. So next, after this we will discuss Franklin experiment or Benjamin Franklin experiment. So one of the easiest experiment actually. So listen it carefully. So next part is our Franklin experiment. So with full of patience try to listen. अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट 1 को बस फोकस कर रहे हैं. देखो
सपोज दिस इज योर ग्लास रॉड, ऐसे मान लो देयर आर टू आइडेंटिकल न्यूट्रल ग्लास रॉड, दीज आर टू आइडेंटिकल्स न्यूट्रल ग्लास रॉड। तो इसको मैं मान रहा हूँ ग्लास रॉड 1 एंड दिस इज योर ग्लास रॉड 2। अभी ये दोनों न्यूट्रल ग्लास रॉड को व्हेन दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट फ्रीली, ये दोनों एक पॉइंट से सपोज उन लोगों को हम सस्पेंड करने से ऐसा डायग्राम दिखाई देगा, देखो। तो व्हेन दे आर सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, तुमको ये चीज ऐसे दिखाई देगा कुछ। Actually, what the diagram is telling, now see, I am holding a pen in my hand and now you are observing that the length of this plane is this much somehow. If I will say look at the pen, so what you are observing? You are only observing the tip portion, and this tip portion behaves as a circle, just like the circle. So like this, if these are through glass rods, glass rod 1 and glass rod 2, तो इन दोनों को ऐसे हम लोग सस्पेंड किए हैं, देखो ऐसे, दिस इज वन ग्लास रॉड, दिस इज अनदर ग्लास रॉड। तो क्या दिखाई दे रहा है तुमको? ये टिप पोर्शन ओनली दिखाई दे रहा है, दैट मींस टॉप पोर्शन। तो व्हेन दे आर सस्पेंडेड फ्रीली कॉमन पॉइंट लुक्स लाइक दिस वन। यहाँ पे हम लोग को लिखना चाहिए व्हेन बोथ आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो दिस इज अंडर द न्यूट्रल कंडीशन। अभी वो लोग चार्ज बड़ी नहीं है। देखो एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है एक्चुअली। अभी क्या करना चाहिए, ये दो ग्लास रॉड, न्यूट्रल आइडेंटिकल ग्लास रॉड को अभी क्या करना चाहिए, देखो ये दो ग्लास रॉड को हमको सिल्क मेटेरियल के साथ अभी रब करेंगे हम लोग। तो व्हेन ग्लास रॉड 1 इज रब्ड विथ सिल्क, यहाँ पे देखो मैं फिर से ग्लास रॉड 2 को भी सिल्क के साथ अभी रब करूंगा। तो रबिंग होने के बाद क्या होगा, वो दो जो आइडेंटिकल ग्लास रॉड तुमको मिल रहा था ना, आफ्टर द रबिंग प्रोसेस क्या हो गया, देखो आफ्टर द रबिंग प्रोसेस दिस बिकम्स ग्लास रॉड 1 डैश G2 डैश ग्लास रॉड 2 डैश। ऐसे मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आफ्टर द रबिंग व्हेन दिस टू ग्लास रॉड्स are suspended from a common point, what Franklin observed, now see, when they are suspended from a common point, just like the previous process, then one glass rod starts to repel another glass rod. That's the point, one glass rod starts to repel the other glass. तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा, दिस फोर्स बिकम्स रिपल्सिव फोर्स, the force becomes repulsive। तो फिर से देखो, इनिशियली when they are suspended, when they are allowed to suspend from a common point, ये दोनों ऐसे थे, देखो। तो आफ्टर द रबिंग प्रोसेस ग्लास रॉड 1 एंड ग्लास रॉड 2 को हम लोग जो सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, वो प्रोसेस हम लोग शुरू किए हैं। देन वन एक्सर्ट रिपल्सिव फोर्स ऑन द अनदर, दैट मीन्स हमको ये पता चला वन रिपेल अनदर ग्लास रॉड। तो इसीलिए मैं उसको G1 डैश G2 डैश में रिप्रेजेंट किया हूँ। तो दिस इज अबाउट योर एक्सपेरिमेंट 1, दिस इज अबाउट एक्सपेरिमेंट 1। एक्चुअली बाद में पता चला, देखो ग्लास रॉड सिल्क के साथ रब होने के बाद ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड सिल्क बिकम्स नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो ऐसा क्यों हो रहा है मैं बोल रहा हूँ, रुको, वेट अप टू दैट मोमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 1 को समझ में आएगा, देखो। नेक्स्ट कम टू अवर एक्सपेरिमेंट 2। so in experiment 2 what we will discuss, see again in experiment 2 we will discuss this type of example just like our experiment 1। here we will draw plastic rod with woolen cloth। तो ऐसे ले जाओ two identical neutral plastic rods, suppose these are, this is your plastic rod 1 P1 and this is P2।
ये क्या है एक्चुअली? टू आइडेंटिकल न्यूट्रल प्लास्टिक। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? टू आइडेंटिकल न्यूट्रल plastic rod. So now, when they are allowed to, when they are suspended freely from a common point, what you will observe? When both are allowed to suspend freely from a common point, you will observe the thing like this. Yes. So there is no force in between them. So this is the condition when both are allowed, when both suspended freely from a common point. तो एक चीज को ध्यान रखो. Now we will do one thing. We have to rub plastic rod 1 and 2 with woolen cloth. ये दोनों को वुलन क्लॉथ के साथ रब करेंगे हम लोग. तो रबिंग होने के बाद हमको क्या मिलेगा? अभी P1 नहीं है, अभी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? P1 डैश एंड P2 डैश. दैट मीन्स आफ्टर रबिंग कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है इन प्लास्टिक रॉड 1 एंड 2 के साथ. कैसे पता चला वो? फिर से वही सेम हरकत को हम लोग रिपीट करेंगे. देखो ये तुम्हारा कॉमन पॉइंट, जहाँ से हम लोग ये दोनों को सस्पेंड करेंगे अभी. एंड सस्पेंड करने के बाद क्या पता चला? वन exerts repulsive force upon the another, just like your previous one example. This is your common point from which they are getting suspended. So this is your P1 dash and this one is P2 dash. तो ये कौन सा फोर्स अवेलेबल है दोनों के बीच में? तो इन्वॉल्व फोर्स इज रिपल्सिव फोर्स. दिस इज ऑल्सो रिपल्सिव. बाद में पता चला जैसे ग्लास रॉड, व्हेन ग्लास रॉड is rubbed with silk, glass rod becomes positively charged body, and when plastic rod gets rubbed with woolen cloth, so plastic rod becomes negatively charged body. ऐसा क्यों हो रहा है एक्चुअली? देखो, दिस इज ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क फंक्शन. पहले वर्क फंक्शन को समझ जाओ, उसके बाद पता चलेगा तुमको ये दोनों रबिंग होने के बाद वूलन क्लॉथ क्यों तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हुआ, नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्यों नहीं हुआ, प्लास्टिक रॉड नेगेटिवली क्यों हुआ, पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ. तो ये सारा का सारा चीज पता चलेगा एक्चुअली आफ्टर द डिस्कशन ऑफ वर्क फंक्शन. सो वेट अप टू दैट मोमेंट. तो आई थिंक दिस एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2, जिसको हम लोग मान रहे हैं फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, so next come to our next page, that is the reason behind the story to give heading work function. तो इसको डिनोट हम लोग करेंगे W और इट इज डिनोटेड बाय द लेटर फाई नॉट. फाई नॉट लिखो, फाई लिखो या W लिखो, जो भी लिखो. तो वर्क फंक्शन का मतलब क्या है? देखो, इट इज डिफाइंड एज द minimum amount of energy required to remove an electron out of the surface of metal. तो इसको मैं आसान तरीके से तुमको समझा रहा हूं. देखो, दिस इज सपोज आवर, यहाँ पे क्या है? देखो, सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस अवेलेबल है. ये है तुम्हारा न्यूक्लियस एंड दिस वन इज आउटर मोस्ट ऑर्बिट. एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे दिस इज द इलेक्ट्रॉन. दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट. दिस इज द इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट. We know inside the nucleus protons and neutrons are present. तो देखो, चार्ज का ट्रांसफर होना वो जरूरी है.
ओके, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ रबिंग चार्ज का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है। दुनिया में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिसमें हम लोग चार्ज को क्रिएट कर पाएंगे। तो चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, रिमेंबर दिस थिंग। तो हियर दिस इज योर इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, एंड जो भी अनचार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ चार्ज, बट व्हिच चार्ज, दैट इज द नेगेटिव चार्ज। एंड इसमें देखो इलेक्ट्रॉन, दिस इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को ये एटम से डिटैच करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगा, दैट इज द वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। आई थिंक इज दैट क्लियर। तो इन दिस केस तो हमको पता चला, देखो एक कंक्लूजन में लिख रहा हूं, जिस मेटेरियल का वर्क फंक्शन जितना स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन उसमें उतना ही इजी हो जाएगा। तो दैट मीन्स सब्सटेंस विथ लो वर्क फंक्शन, सब्सटेंस विथ लो और लेस वर्क फंक्शन, क्या मतलब क्या है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड easily out of the metal। एंड जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रल पे सेम पॉजिटिव सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव था, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो साइमल्टेनियसली ऑन द अदर साइड तो पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो दैट मीन्स मटेरियल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, व्हिच इंप्लाइज सब्सटेंस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मतलब हमको पता चल गया एक्चुअली एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन। ओके, एंड एक्सेसिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन होने से वो बॉडी क्या हो जाएगा, वो चार्ज बॉडी को हम लोग नेगेटिवली चार्ज बॉडी मानेंगे। तो इसमें पता चल गया एक्चुअली द सब्सटेंस व्हिच इज हैविंग लो वर्क फंक्शन दैट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ऑलवेज। तो इन आवर प्रीवियस एग्जांपल देखो, ये एक्सपेरिमेंट 1 को चलो, तो एक्सपेरिमेंट 1 पे देखो क्या पता चला हमको, आफ्टर द रबिंग ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, एंड दिस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो इसमें मुझे बोलो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया, मीन्स हमको पता चल गया इसमें। तो रीजन क्या पता चला, यहाँ पे हम लोग रीजन को अटैच करेंगे अभी। वर्क फंक्शन ऑफ ग्लास रॉड, जो सब्सटेंस पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा उसका वर्क फंक्शन लेस। तो वर्क फंक्शन ऑफ ग्लास रॉड is less than work function of silk cloth. This is the reason. And in experiment 2 पे क्या हुआ, जो प्लास्टिक रॉड वुलन क्लॉथ के साथ रबिंग के बाद ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, एंड दिस P2 डैश मींस दिस इज आल्सो नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो उसका रीजन क्या है, तो पॉजिटिव कौन है अभी, वुलन क्लॉथ, तो दैट मीन्स उसका रीजन हम लोग ये लिखेंगे, द रीजन इज work function of woolen cloth is less than work function of plastic rod। देखो कितना आसान हो गया ये चीज को समझने के लिए। तो इन ए वेरी सिस्टमेटिक वे वी कैन राइट दिस रीजन इन दिस फॉर्मेट। तो दिस इज अबाउट योर एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2, दैट इज अवर फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट। तो इसमें पता चला एक प्रोसेस अवेलेबल है दुनिया पे जिसको हम लोग फ्रिक्शन बोलेंगे और रबिंग बोलेंगे। इसमें क्या होगा, न्यूट्रल बॉडी गेट्स कन्वर्टेड टू चार्ज बॉडी। दैट मीन्स वी कैन से, तो नोट पॉइंट में इसको याद रखोगे तुम लोग, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सब्सटेंस और मटेरियल्स। तो इसको मैं लेफ्ट हैंड में लिख रहा हूँ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, एंड इन राइट साइड आई एम गोइंग टू मेंशन नेगेटिवली चार्ज। तो देखो पहला पेयर तो हमको याद रह गया, ग्लास रॉड, अनदर वन इज सिल्क, एंड सेकेंड क्या है, वुलन क्लॉथ, एंड नेगेटिव कौन सा होगा, प्लास्टिक रॉड। और एक चीज याद रखो, ड्राई हेयर कॉम्ब, और क्या है, फॉर इबोनाइट रॉड, और कौन सा पेयर है, वुड,
इट्स पेयरिंग पार्टनर इज टेफ्लॉन, गुड टेफ्लॉन। मैं कोई भी चीज पूछूंगा तुमको, ड्राई हेयर एंड कॉम ले जाओ। इन केस ऑफ ड्राई हेयर एंड कॉम, इसका वार फंक्शन स्मॉल है, बोलो लेस है, तो वार फंक्शन ऑफ ड्राई हेयर इज लेस देन वार फंक्शन ऑफ कॉम। तो इसीलिए कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, चार्ज का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ड्राई हेयर से कॉम तक ट्रांसफर होगा। यस, so after that, after the transfer of electrons from dry hair to comb, dry hair becomes positively charged body and comb becomes negatively charged body. This is happening because of the reason what? That reason is work function. I think up to this we have completed our Franklin experiment. So कौन दो मेटेरियल चार्ज बॉडी, एक मेटेरियल चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी, इसको समझने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है एक्चुअली, इसको चेक करने के लिए। चेक करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसको अभी हम लोग शुरू करेंगे। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, देखो कोई भी एक सब्सटेंस न्यूट्रल बॉडी है और चार्ज बॉडी है, तो पता कर देगा। देखो तो नेक्स्ट गिव हेडिंग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्या है, देखो मैं एक डायग्राम कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। ये एक इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर, एंड ये जो इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर दिखाई दे रहा है तुमको, में ये वाला हिस्सा पे देखो एक रबर स्टॉपर अवेलेबल है। उसके बाद क्या होगा, में एक मेटालिक रॉड भी इंसर्ट होगा। क्या होगा, एक मेटालिक रॉड को हम लोग इंसर्ट करना है। देखो दिस इज आवर मेटालिक रॉड, मेटालिक रॉड, एंड वन एंड पे क्या होगा, वन एंड पे तुम्हारा गोल्ड लिप अटैच हुआ है। देखो मेटालिक रॉड का वन एंड पे गोल्ड लिप अटैच हुआ है, एंड जो दूसरा एंड है ना, उसमें क्या है, एक मेटालिक नॉब अवेलेबल है। देखो यहाँ पे एक मेटालिक नॉब अटैच बस, जिसका नाम जो भी है उसको मेंशन करना चाहिए हमको। दिस इज योर इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर, and next this one is metallic rod, and these are your gold leaf, very thin, very thin, and this is your metallic knob, and this one is rubber stopper, this is your rubber stopper। डायग्राम तो आसान डायग्राम है ना बस। तो इनिशियली तुमको क्या दिखाई देगा, देखो इनिशियली यहाँ पे जो मैं गोल्ड लिप ड्रॉ किया हूँ ना, इनिशियली वो दोनों ऐसे थे, ये दोनों ऐसे अटैच में थे। अभी क्या होगा, कोई भी एक चार्ज बॉडी को मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा। देखो एक चार्ज बॉडी को यहाँ पे लेकर आ रहा हूं मैं। दिस इज सपोज योर नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ये कौन सा चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। टच हो गया मेटालिक नॉब के साथ। टच होने के बाद ये जो गोल्ड लिप पे मेटालिक चार्ज पे, सॉरी गोल्ड लिप पे नेगेटिव चार्ज अपेयर हो जाएगा। यस, क्योंकि ट्रांसफर होगा चार्ज। तो क्या होगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अभी वो दो लीफ ऐसे थे ना, वो ऐसे हो जाएंगे। तो जितना अमाउंट में नेगेटिव होगा उन दोनों के बीच में डाइवर्जेंस, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस क्या होगा, उतना ही इंक्रीज होगा। किसके बीच में, टू गोल्ड लीफ के बीच में। तो अभी क्या होगा, डायग्राम कैसा दिखाई देगा, देखो भाई दो लीफ ऐसा दिखाई देगा तुमको। दिस इज वन लीफ, दिस इज अनदर लीफ। एंड ये क्यों हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपेयर होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज अपेयर होगा। तो जितना डाइवर्स होगा ना, दैट मीन्स वो उतना अमाउंट पे चार्ज है। तो एक बॉडी न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसका नाम क्या है,
जो डायग्राम में क्या हूँ उसका नाम क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें कंक्लूजन में क्या लिखना है, द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इन गोल्ड लीव्स gives the idea about presence of charge in a body। देखो फर्स्ट एक दो क्लास क्या दिखाई देगा तुमको, बेसिक एंड फंडामेंटल थिंग को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद तो कूलम्स फोर्स आ जाएगा, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ के बाद वन बाय वन विल डिस्कस न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी। न्यूमेरिकल एज थ्योरी को साइमल्टेनियसली हम लोग कंप्लीट करके चले जाएंगे। तो व्हेन यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व द or when you are going to start the lecture number 2 or 3, that means you have to keep all the things in mind that is available in lecture number 1। तो लेक्चर नंबर 3 शुरू करने से पहले 1 और 2 को कंप्लीट करके आना, तभी जाकर ये सब चीज समझ। आगे बहुत सारा मैथमेटिकल पार्ट अवेलेबल होगा तो उसको भी हम लोग समझेंगे। तो दिस इज अबाउट योर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, अभी जो 2 टाइप्स ऑफ चार्ज बॉडी दिखाई देगा हमको। वन इज योर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये भी एक नोट पॉइंट में लिखो, मेंशन करो। एक है तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। सी डॉट बी का मतलब चार्ज बॉडी। तो इसका मतलब क्या पता चला हमको, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रेस्पेक्ट टू W डॉट R डॉट T का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन। एंड नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या हुआ, नेगेटिवली चार्ज बॉडी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स with respect to proton, with respect to number of proton। इसमें मैं पूछूंगा तुमको, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे क्या हुआ, लेस इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो दिस इज अबाउट आवर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ये तो बहुत आसान था एक्चुअली। नेक्स्ट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट इज आवर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। I think whatever we have discussed up to 11th number slide, that is very easy. Keep all these things in mind। and ये भी पता चल गया हमको, कोई भी न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो रहा है मीन्स दैट इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। एंड कौन सा चार्ज का ट्रांसफर होगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मीन्स दैट प्रोटॉन दे आर अवेलेबल इनसाइड द न्यूक्लियस। एंड रिमेंबर इनसाइड द न्यूक्लियस दे आर अंडर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। तो इसीलिए उन लोगों का ट्रांसफर होना बहुत डिफिकल्ट। यस, एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर हो जाएगा कब, व्हेन द सब्सटेंस का जो वर्क फंक्शन वो लेस होगा। तो नेक्स्ट इज आवर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। तो पहला पॉइंट क्या है, देखो फर्स्ट 2 पॉइंट तो बहुत इजी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। किसी भी पॉइंट पे तुमको थोड़ा लैगिंग दिखाई देगा तो यू मे कमेंट ऑल दिस थिंग्स regarding the handwriting, size of the letter, okay, video quality, everything। तो like charges repel and unlike charges attract each other। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में हम लोग ये लिख पाएंगे, चार्जेस आर ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट क्या है, देखो चार्ज इज इनवेरिएंट। ये एक न्यू वर्ड, इनवेरिएंट का मीनिंग क्या है, दैट मीन्स चार्ज विल नॉट वेरी, चार्ज ऑफ ए बॉडी विल नॉट वेरी
whether the body is at rest or it is in motion. तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, दैट इज चार्ज ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ दैट बॉडी व्हेन द बॉडी इज इन मोशन. बट इसको मास के साथ कंपेयर करने से क्या होगा, मास इज वेरिएंट, बट रिमेंबर मास इज रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट. रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट इसका मीनिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो जो फॉर्मूला था हमारा, उनको पता नहीं एक्चुअली, एम इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रूट ओवर. ये फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करने से क्या पता चलेगा, देखो ये फॉर्मूला में व्हाट इज एम एंड व्हाट इज एम नॉट, ये भी तुमको पता होना चाहिए. रिमेंबर इट इज विल नॉट डिस्कस इन डिटेल बिकॉज दिस इज नॉट अवेलेबल इन आवर सिलेबस. तो एम क्या है एक्चुअली, एम है तुम्हारा मूविंग मास ऑफ बॉडी, moving mass of body, and m naught is the rest mass of the body. m naught क्या है, that is the rest mass of body. when the body is at rest, का जो mass होगा ना, rest mass of body. तो v क्या है इसमें, v है तुम्हारा speed of the body, speed of body. and what is c, c तो हमको पता है एक्चुअली, c is the speed of light. तो आइंस्टाइन क्या बोले थे, कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट का कंपेरेबल स्पीड के साथ मूव करेगा तो दैट मीन्स सपोज स्पीड ऑफ लाइट हमको पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो एक बॉडी ले जाओ जो कि ट्रैवल कर रहा है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कंपेरेबल विद द स्पीड ऑफ लाइट. So in that case the mass of the body in that speed, when the speed of the body is comparable with the speed of light, in that case the mass of the body during the motion slightly increases as per this formula. तो इसीलिए हमको बोल रहा है mass is relativistically variant. This is the meaning of this sentence. But charge is invariant. So I think that is clear to all of you. These are 4 characteristics हो गया. इसके बाद और एक चीज देखो, मैं जो सब्सटेंस अभी पकड़ के रखा हूँ अभी, ये पेन, ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी, दैट मीन्स उसका चार्ज कितना 0, लेकिन उसका मास 0 नहीं है. दैट मीन्स इसमें क्या पता चला, इस वे में हम लोग ये लिख पाएंगे, देखो पॉइंट नंबर 5 पे को ये लिखना चाहिए, चार्ज कैन एग्जिस्ट, charge cannot exist without mass, without mass, but mass exists with or without charge. कोई भी चार्ज बॉडी ले जाओ, इसका मास अवेलेबल है उसके पास, एंड देखो ये न्यूट्रल बॉडी, इसका भी मास अवेलेबल है. तो मास एग्जिस्ट विथ और विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास. तो दिस इज द मेन पॉइंट. एंड इसके बाद और एक पॉइंट हम लोग को लिखना चाहिए, पॉइंट नंबर 6, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं अभी डिस्कशन करने वाला हूँ. देखो मैं चार्ज के बारे में लिख रहा हूँ अभी, कैरेक्टरिस्टिक्स चार्ज. सपोज in this case charge is at rest. So remember, when charge is at rest it produces electric field only, electric field only. But when charge is in motion, ये मोशन को हम लोग 2 तरीके से डिवाइड करेंगे अभी. एक है तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन हमको पता है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट, दैट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट, एंड वेलोसिटी कांस्टेंट होने से एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा, दैट मींस एक्सीलरेशन का वैल्यू इसमें 0 होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. तो वेलोसिटी कांस्टेंट मींस सेम वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, उसका डिफरेंस क्या होगा 0. तो एक्सीलरेशन 0 होने से देखो ये जो यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन, रिमेंबर the charge produces, in this case charge will produce electric field as well as magnetic field. So in this case charge produces electric and magnetic field. Electric field and magnetic field. So now
we will consider the next case, that means non-uniform motion. Non-uniform motion के बारे में देखो, in this case we can write here acceleration of charge particle that is not equal to 0, and in this case चार्ज अभी क्या प्रोड्यूस करेगा बोलो, चार्ज प्रोड्यूसेस फर्स्ट थिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, second is magnetic field, it is also true, and third क्या है, in this case it radiates some energy, and charge radiates or emits some energy. So keep all these things in mind. तो ये तीनों केस में हमको क्या पता चला, when charge is at rest or whether it is in motion, okay, or in all these cases charge produces electric field, but magnetic field produce करेगा या नहीं, क्या मोशन के ऊपर डिपेंड करेगा. दैट मीन्स कौन सा टाइप का मोशन, यूनिफॉर्म होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. देखो नॉन यूनिफॉर्म में भी मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इसमें एनर्जी रेडिएट नहीं हो रहा है, इसमें एनर्जी रेडिएट हो रहा है. दैट्स द डिफरेंस. तो ये चीज़ को याद रखो. So this will help you a lot. So this is about our charge, characteristics of charge. So next we will discuss properties of charge. देखो, so now come to our properties of charge. यहाँ पे हम लोग 3 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे. वन इज योर एडिटिव नेचर, अनदर वन इज आवर कंजर्वेटिव नेचर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नॉट कंजर्वेटिव नेचर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. थर्ड वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ये तीनों केस हम लोग को डिस्कशन करना है आज के सेशन पे. तो नेक्स्ट वन इज इवेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. फर्स्ट क्या है देखो, फर्स्ट इज अवर एडिटिव इन नेचर. एडिटिव नेचर, लेट अस कंसीडर एक बॉडी अवेलेबल है यहाँ पे. दिस इज वन बॉडी एंड इसमें +5 कूलम चार्ज यहाँ पे. दिस इज योर चार्ज +2 कूलम, -3 कूलम एंड +1 कूलम. दिस इज -2 कूलम. सपोज ये सब चार्ज अवेलेबल है. तो मैं पूछूंगा व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी. मैं पूछूंगा फाइंड द क्यू टोटल. तो आज चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी. सिंपली अप टू क्लास 10 जो भी तुमको एडिशन बताए उसको ही फॉलो करो. दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो क्यू टोटल क्या होगा, +5 +2 +1 देन -2 -3. कितना हुआ ये, that is +3 coulomb. So this is the total charge in this body. I think it is clear. So in language part, additive nature और additive property, तो इसको ऐसे मेंशन करो, additive property. तो लैंग्वेज में हम लोगों को क्या लिखना चाहिए, तो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी is the algebraic sum of all the charges located at different points. Bas. So this is about the additive nature. Next come to our second property, that is your conservation of charge. That is very simple actually. Next is conservation of charge. तो इसमें क्या देखो, तो चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ये लैंग्वेज तो हमको पता है एक्चुअली. चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड
and nor be destroyed. एंड ये क्या हो पाएगा, चार्ज इज ट्रांसफरेबल में लिखा था, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. Can only be transferred from one body to another body. This is about our conservation of charge. For example, if you will see, for example, इसको याद रखो, बहुत सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ तुमको. NaCl का आयोनाइजेशन होने से क्या होगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये दो आयन हमको मिलेगा. तो इन दिस एग्जांपल, दिस इज द बिफोर आयोनाइजेशन प्रोसेस एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग आफ्टर आयोनाइजेशन. तो Q टोटल बिफोर आयोनाइजेशन हमको क्या पता चल रहा है, इन दिस केस बिफोर आयोनाइजेशन Q total is 0 and after ionization, remember after ionization Q total also 0. ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल है बुक में, तुम लोग कोई भी बुक फॉलो करो, बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा तुमको. बट यू हैव टू, मैटर क्या है, तुमको तुमको दिमाग में फिक्स करना चाहिए इस सब को. तो जितना अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन तुम लोग दिमाग में स्टोर करोगे उतना ही तुमको रिप्रेजेंट कर पाओगे तुम लोग आसान से. तो दिस इज अबाउट योर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. एंड लास्ट वन हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो आज के इस दुनिया पे ये याद रखो, इंफॉर्मेशन इज पावर. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये देखो, ये भी एक चीज जो कि जो वर्ड तुमको नया लग रहा है एक्चुअली, बहुत, दिस वर्ड इज न्यू टू यू. Actually, this word is new to you. In class 10 physics, I don't know whether you have discussed, it is discussed to you or not. But क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखो, कोई भी एक्सरसाइज समझो, तुमको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एक होटल पे तुम लोग जाओगे एंड उसमें ओनली वन आइटम अवेलेबल है, दैट मीन्स स्वीट. एंड एक ही स्वीट अवेलेबल है, एक ही स्वीट मीन्स एक ओनली वन टाइप का स्वीट अवेलेबल है. यस. तो कोई भी बंदा जिसको स्वीट पसंद है या चाहे पसंद नहीं है, ओके, ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट गए थे, सपोज फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स गए हैं अभी एक होटल पे, तो यहाँ पे एक वेराइटी का स्वीट अवेलेबल है. तो तुम्हारा इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड कुछ नहीं करेगा एक्चुअली. तो तुम लोग को ऑर्डर करना चाहिए स्वीट. तो तुम लोग क्या करोगे, जिसको स्वीट अच्छा नहीं लग रहा है वो मिनिमम वन स्वीट को ऑर्डर करेगा. देन जिसको अच्छा लग रहा है, देखो जिसको अच्छा नहीं लग रहा है तो वन स्वीट होगा. देन जिसको अच्छा लग रहा है, सपोज इसको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो 3 स्वीट्स वो ऑर्डर कर पाएगा. देन जिसको बहुत अच्छा लग रहा है वो 7 स्वीट सपोज ऑर्डर कर रहा है. तो इसमें पता चल रहा है, देखो हाफ स्वीट का सेम टेस्ट, जिसमें फुल स्वीट का जो भी टेस्ट है ना, हाफ स्वीट का भी सेम टेस्ट, बट इट हैज नो फ्री एग्जिस्टेंस इनसाइड द होटल प्रीमिसेस. तो इसीलिए हम लोग हाफ स्वीट को ऑर्डर नहीं कर पाएंगे. तो मिनिमम स्वीट दैट कैन बी ऑर्डर इनसाइड द होटल प्रीमिसेस, दैट इज कॉल्ड एलिमेंटरी स्वीट. मेरे लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, इसको हम लोग मानेंगे एलिमेंटरी स्वीट. एंड देखो इसमें कितना स्वीट अवेलेबल है, ओनली वन स्वीट अवेलेबल है. एंड इन दिस फैक्ट हियर 3 स्वीट्स आर अवेलेबल, बट दिस 3 कैन बी रिटन एज 1 into 3. एंड हियर 7 स्वीट्स आर अवेलेबल, 1 into 7. तो देखो जो भी प्लेट तुम लोग को ऑब्जर्व करो, तुम लोग चाहे जो भी प्लेट ऑब्जर्व करो, इन अदर प्लेट्स whatever number of sweets are available, that doesn't matter, but remember one thing, all the sweets available in other plates, that is an integral multiple of one sweet, जिसको हम लोग मान रहे थे elementary sweets. क्यों? It has free existence inside the hotel premises, which can be ordered freely. Okay, without any hesitation you may order only one sweet as a minimum amount. Yes, so like this, so I think this part is clear. तो इसको मैं मेरे लैंग्वेज को भी कंटेंट के साथ अटैच करूंगा, तो उसको थोड़ा ऑब्जर्व करो. तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग को क्या लिखना चाहिए, पहला पॉइंट में लिख रहा हूँ, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज which has free existence in nature.
which has free existence in nature is called elementary charge, called elementary charge or quantum of charge. ये जो एलिमेंटरी चार्ज हम लोग को दिखाई दे रहा है, एलिमेंटरी चार्ज लिख रहा हूं मैं, उसका वैल्यू क्या है? दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो ये एलिमेंटरी चार्ज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, देखो तो इसको रिप्रेजेंट करोगे ई लेटर से, एंड ई का वैल्यू कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लॉम। देन ये है तुम्हारा एलिमेंटरी चार्ज, सबसे छोटा चार्ज कितना, उससे भी छोटा अवेलेबल है, क्वार्क मॉडल डिस्कशन होगा तो तुमको पता चल जाएगा। एलिमेंटरी चार्ज से भी छोटा चार्ज अवेलेबल है, बट दो चार्जेस आर हैव नो फ्री एग्जिस्टेंस इन द नेचर, इसीलिए हम लोग उसको एलिमेंटरी नहीं बोलेंगे। तो एलिमेंटरी मीन्स द अमाउंट ऑफ चार्ज, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज व्हिच हैज फ्री एग्जिस्टेंस इन नेचर इज कॉल्ड एलिमेंटरी चार्ज। एंड ये भी पता है, ये भी याद रखो, द चार्जेस अवेलेबल इन ऑल बॉडी दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंटरी चार्ज। ये जो चीज को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलेंगे। क्वांटाइज्ड चार्ज इज क्वांटाइज्ड, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन एलिमेंटरी चार्ज। तो यहां पे लिखना चाहिए चार्ज ऑन ऑल बॉडीज, चार्ज अवेलेबल in all bodies is an integral multiple of elementary charge। So this is quantization of charge। ये चीज क्वांटाइजेशन नहीं है, एलिमेंटरी चार्ज क्या है मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो एज फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैं यहाँ पे ऐसे डिफरेंस करूंगा। देखो सपोज एनी बॉडी अवेलेबल है, एक चार्ज बॉडी, तो चार्ज बॉडी क्या हो सकता है? इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिवली चार्ज बॉडी। सपोज इट इज पॉजिटिव चार्ज बॉडी, तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होने से मिनिमम चार्ज कितना हो पाएगा? +3, और उससे ज़्यादा +2e, +3, इंटीग्रल मल्टीपल ना। तो ऐसे करके मैं कोई भी दुनिया का कोई भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके चार्ज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? Q इज इक्वल टू +Ne। लाइक दिस नेगेटिव चार्ज बॉडी होने से तो इसका मैं लिखूंगा -e, देन उससे ज़्यादा -2e, -3e, तो डॉट डॉट डॉट। तो Q को हम लोग इन जनरल एनी टाइप ऑफ नेगेटिव चार्ज बॉडी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे Q इज इक्वल टू -n। तो दिस इज फॉर नेगेटिव चार्ज बॉडी एंड दिस वन इज फॉर पॉजिटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो मैं पूछूंगा तुमको इन जनरल एनी टाइप ऑफ चार्ज बॉडी का चार्ज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एनी चार्ज बॉडी, नॉट पॉजिटिव और नॉट स्पेसिफिकली नेगेटिव। तो इन केस ऑफ एनी चार्ज बॉडी, any charge body we can write Q is equal to +-Ne, Q is equal to +-Ne। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मैथमेटिकल फॉर्मूला। अभी जो प्रीवियस स्लाइड में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे दैट इज द क्वालिटेटिव पार्ट, एंड दिस इज अबाउट द क्वांटिटेटिव, जिसमें हम लोग क्वांटिटी को मेजर कर पाएंगे। क्वालिटी मीन्स इट डील्स विथ descriptive part, that is qualitative। Quantitative means it is dealing with some amount, the strength, the exact measurement we can do। Okay? So in case of any charge body Q is equal to +-Ne, and where N is equal to, where N का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lost or gained by the body, number of electron lost or gained by the body, this is the meaning of। तो इसमें मैं एक ट्रिक बोल रहा हूँ तुमको, देखो वो ट्रिक का मतलब क्या है। मैं एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे, जिसको मैं मान रहा हूँ शुभेंदु लाइन, इसको याद रखो तुम लोग, शुभेंदु लाइन। तो इसमें मैं ले रहा हूँ दिस इज योर 0 कूलम, दिस इज 1 कूलम, दिस इज 2 कूलम, दिस इज 3 कूलम, डॉट। एंड यहाँ पे मैं ले रहा हूँ उसको -1 कूलम, ये चीज -2 कूलम,
एंड दिस वन इज -3 कूलम। तो बस मुझे यहाँ पे देखकर बोलो, देखो ये जो डायरेक्शन में अभी शो कर रहा हूँ, तो इसी डायरेक्शन में हम लोग मूव करने से तो बॉडी का जो चार्ज बड़ी ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है। तो जो ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है दैट मीन्स क्या, उसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को पास कर रहा है, बाईपास कर रहा है। मेथड्स अवेलेबल है, दैट पार्ट विल बी डिस्कस्ड इन लेटर। तो यहाँ पे मैं इस साइड पे चला जाऊंगा, तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, चार्ज बॉडी का पॉजिटिव होना इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट क्या रिवर्स मैनर पे हम लोग मूव करने से क्या लिखूंगा मैं, गेन इन इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को तुम लोग गेन करोगे, सिंपल से याद रखो, ओके, सिंपल सा पॉइंट, कोई भी आदमी जितना बुरा काम को छोड़ देगा तो उसके अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाएगा। जितना नेगेटिविटी को तुम लोग भगा दोगे तुम्हारे अंदर उतना ही पॉजिटिविटी डेवलप हो जाएगा। लाइक दिस, कोई भी बॉडी, कोई भी न्यूट्रल बॉडी, इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी उसमें होगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो दिस इज योर शुभेंदु लाइन एज पर दिस। सो कोई भी बॉडी का देखो चार्ज क्या था, तो मैं बोलूंगा 4 कूलम था। आफ्टर द रबिंग उसका चार्ज हो गया 6 कूलम। तो क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूमेरिकल पे ये चीज हम लोग को अप्लाई करना चाहिए। यस, तो कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड। आई थिंक दिस इज आवर सेशन नंबर 1, दिस इज वेरी फंडामेंटल। एंड और एक चीज मैं तुमको बोलना चाहूंगा, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में लिखा था ना, उसका चार्ज एंड मास को याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन 1। मैं लिखूंगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू मीन्स चार्ज, यहाँ पे ई मीन्स इलेक्ट्रॉन। उसका चार्ज क्या है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19। और एक चीज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एंड मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। So keep all these things in mind. Keep all these things in mind. This will help you in numerical. और एक चीज मैं तुमको टास्क दे रहा हूँ, देखो टास्क तो नहीं दे रहा हूँ, बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी मैं तुमको पूछूंगा, देखो और एक नोट पॉइंट। ओके ओके, दिस इज द लास्ट पॉइंट। ओके, दिस वन इज द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर सेशन नंबर। तो मैं लिख रहा था तुमको एलिमेंटरी चार्ज का, एलिमेंटरी चार्ज का वैल्यू कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मैं उसको, ये क्या है, इन एसआई, दिस इज इन एसआई। तो इन ईएसयू, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का वैल्यू क्या होगा, एलिमेंटरी चार्ज का वैल्यू। तो ये कूलम को हम लोग को स्टार्ट कूलम पे कन्वर्ट करना चाहिए। तो कितना होगा, ई विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड 1 कूलम इज इक्वल टू, हमको पता है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 स्टार्ट कूलम। तो फाइनल आंसर कितना होगा, 1.6 इंटू 3 दैट इज 4.8 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 9 दैट इज -10 स्टार्ट कूलम। दिस इज द आंसर ऑफ value of E in electrostatic unit. This is the value in electrostatic unit. This is the value. And in electromagnetic unit, in EMU, we know E is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, and a 1 coulomb is equal to 1/10 of coulomb. फर्स्ट स्लाइड पे हम लोग डिस्कशन किए थे, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1/10 ऑफ कूलम। तो सॉल्व करने के बाद क्या पता चलेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻20 ऑफ कूलम। ये किसका वैल्यू, ई का वैल्यू, किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट पे। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ई मीन्स एलिमेंटरी चार्ज और क्वांटम ऑफ चार्ज। यस, so this is about our session number 1, and in session number 2 basically we will discuss methods of activation of charge, that is कोई भी न्यूट्रल बॉडी को कैसे हम लोग चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो 3 टाइप्स ऑफ, बहुत सारे मेथड अवेलेबल है, लेकिन फॉर दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बेसिकली फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड द फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट, दिस इज completely related to friction part. Rubbing means friction, so that part we will not discuss again.
That means we have to give heading friction, then simply I will write Franklin experiment. That part will be covered. After that, in very detailed manner with numericals, we will discuss conduction and induction. After that, we will solve the numericals related to our quantization of charge. So I hope the session number 1 is clear to all of you. So that's all for today. And lastly, I want to say I am trying my best to upload the lecture in a very sequential manner, and chapter by chapter I will upload. So don't worry about this thing. So keep all these things in mind and attend the lecture number 2 or session number 2, and try to like, share and subscribe my channel, and try to share this channel to your friends for the benefits of your friends. Okay, if you want to give any true suggestion, then you may send in comments. Thank you. Have a nice day.